Is my voice audible to you? Please reply with me. Good. Okay. So today we are starting with a new session. In the last lecture, that last two sessions, we learned about the 14 principle of management of Henry Fayol and nature and significance of management, right? So if you have any doubts regarding that particular session, मतलब आपको कोई principle of management में doubts है या किसी भी topic में doubt है, so you can ask me now. For first 5-10 minutes वो doubts हम लोग clear करेंगे. So you can send me through chat if you have any doubts regarding any topic of the last lecture. So we can okay. I think so nobody has any doubts regarding the last lecture. So we can start with a new session today. Today we'll be learning about F.W. Taylor. The full name is Frederick Winslow Taylor. Okay, he also has portrayed some scientific management. So let us understand about his level of management. तो आज हम लोग F.W. Taylor के बारे में पढ़ने वाले हैं. I'll be sharing my screen with you, but today we'll be learning with the help of a test book. So wait for a second. In the last segment, where we learned about Henry Fayol, if you see over here, today we'll be learning about F.W. Taylor. Okay. Now, if you talk about F.W. Taylor, before starting his principle of management, थोड़ा F.W. Taylor के बारे में थोड़ा information लेते हैं कि कौन था F.W. Taylor. Now, he was an American engineer. Okay. And ये जो American engineer था ना, ये पहले से engineer नहीं था. When he started his work, मतलब 18 साल की उम्र में उसने काम चालू किया. At the age of 18, that time he was a laborer. He used to work in a industry. The name of that industry was Midvale. Midvale was the name of that industry. As a labor, he used to work over there. तो जब वो लेबर जैसा काम कर रहा था ना वहां पे, that time he saw that the workers were not efficiently. After 5 to 6 years, he got a degree of masters in engineering. After getting the degree of masters in engineering, then he started laying the principles of scientific management. इसके लिए ना F.W. Taylor को he is called as the father of scientific management. ठीक है, वो Henry Fayol was father of modern management. He is the father of scientific management. अभी scientific का मतलब क्या है? The meaning of science means systematic approach, or we can say systematic analytical approach. ओके मतलब वो क्या बोल रहे हैं मतलब क्या साइंस मतलब सिस्टमैटिक एनालिटिकल अप्रोच मैनेजमेंट मींस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल ओके अगेन साइंस मींस सिस्टमैटिक एनालिटिकल अप्रोच मैनेजमेंट मींस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल अगर मैं दोनों को क्लब करूंगा तो उसका मतलब है कि वी शुड डायरेक्ट एंड कंट्रोल पीपल इन अ साइंटिफिक वे इन अ सिस्टमैटिक वे ये कौन बोल रहा है F.W. Taylor मींस द people who are working the company should be managed in a scientific way, that is in a systematic way. ठीक है, this is laid by F.W. Taylor. उसके पूरे करियर में he has worked in 3 industries. He has wrote many articles. उसमें से ये एक आर्टिकल है that is principle of scientific management. There are many other articles. ठीक है, so he was a famous person that time, F.W. Taylor. Now, which are the or what are the scientific management? The principles of scientific management we'll be learning today. Okay, let us start it one by one. अभी ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स उसने जो ले किए ये जो 6 प्रिंसिपल्स है उसके ये प्रिंसिपल्स है ना उसने एक ही रात में लिखे नहीं है ओके उसको बहुत टाइम लगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक अप्रोच ऑब्जर्वेशंस अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं द फर्स्ट प्रिंसिपल ही रोट इन द ईयर 1895 में उसने पहला प्रिंसिपल लिखा एंड द सेकंड प्रिंसिपल वाज रिटन इन द ईयर 1903 It took almost 8 years to write the next principle. तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के बाद में ये प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है
तो हम लोग एक एक करके ये प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल of management is science not rule of thumb. Means FW Taylor यहाँ पर क्या बता रहा है कि we should take decisions, we should complete the work in a scientific way, not rule of thumb. Rule of thumb मतलब क्या मतलब है कि आप एक काम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर रहे हो. मतलब आपने एक मेथड चूज किया, वो मेथड चला तो अच्छा है, नहीं चला तो दूसरा मेथड यूज करेंगे. बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मेथड्स बार बार आप चेंज करते रहोगे काम के टाइम पे, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो FW टेलर क्या बोल रहा है कि पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, उसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है वो चूज करो एंड देन इंप्लीमेंट दैट मेथड. दैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक अप्रोच. ठीक है. तो FW टेलर बोल रहा है कि पहले कैसे ना वर्कर्स और मैनेजर्स अपने हिसाब से काम करते थे. मैनेजर बोलता था कि ये जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है, तो सबको वही फॉलो करना पड़ता था, भले उससे प्रोडक्टिविटी कम हो. लेकिन FW टेलर क्या बोलता है कि आप सब मेथड में से कोई एक अच्छा मेथड, सबसे बेस्ट मेथड यूज करो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच. तो FW टेलर बोला है कि you should run an organization on the basis of scientific, that is systematic way, not on the basis of rule of thumb. Rule of thumb नहीं चलेगा, scientific approach होना चाहिए. ये कौन बोल रहा है? FW टेलर. ओके ओके. नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब क्या है? पीस. अब ये पीस किसके बीच में होना चाहिए? शांति किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स. There should be a harmony and coordination between managers and employees. Then only you can achieve organizational goal. If managers and employees they are not working in tandem, मतलब एक दूसरे के बीच में conflicts है, तो नहीं होगा. ये हमने हेनरी फॉयल के टाइम पे भी पढ़ा था. There should be harmony between employees and manager. तो ही organizational goal achieve होता है. ठीक है. तो ही prosperity होता है. ठीक है. Now, next one is mental revolution. Now, this mental revolution point is connected to harmony and not discord. Mental revolution मतलब क्या है कि when the employee is coming to a work, मतलब वो जब काम करने को आ रहा है, he should come with a positive attitude. Managers when they are coming to the work, they should come with positive attitude. Manager and employee should have a positive relation. ठीक है. This is called as mental revolution. Means mentally you should be positive. If you are not positive mentally, then you will not work properly. You will not support your organization in a good manner. Okay, you will not cooperate with the managers or your superiors. So there should be mental revolution. So when you're coming to work, you should be in a positive attitude. Managers का ध्यान, ये responsibility होता है कि हर एक employee positive manner में काम करना चाहिए. ठीक है. उनको motivate करना चाहिए, उनको respect देना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके आइडिया सुनना चाहिए, तब जाके ग्रोथ होगा. अभी मेंटल रेवोल्यूशन का आगे का वर्जन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. जो लोग देख रहे हैं ना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब ये इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या? मैनेजर बोला कि मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाहिए, बाकी एम्प्लॉइज बोलते हैं कि नहीं, मेरे को मेरे हिसाब से काम करने को मिलना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअलिज्म. कोऑपरेशन मतलब क्या? व्हेन पीपल आर वर्किंग टुगेदर, मैनेजर आर लिसनिंग टू द आइडियाज ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मैनेजर. बिकॉज कैसे है ना कि अगर कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा. एंड यू शुड ट्रीट योर एम्प्लॉइज वेरी nicely, respectfully, because they are the integral part of an organization. ठीक है. your full work, your full goals depend on your employees. अगर आपका एम्प्लॉइज खुश नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉइज उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा. ओके. तो ये था हार्मनी नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके. बिकॉज कैसा है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का दो पिलर्स होते हैं. दो पिलर्स मतलब कैसे है कि एक पिलर होता है एम्प्लॉइज और एक पिलर होता है मैनेजर. तो दोनों पिलर स्ट्रांग होना चाहिए. इसमें से अगर एक भी पिलर वीक हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन गिर सकता है. तो मैनेजर्स भी अच्छे एटीट्यूड में होना चाहिए और एम्प्लॉइज का भी एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए. तो ये था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी.
याद है हमने 14 प्रिंसिपल में पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, जिस जो हेनरी फॉयल ने बोला था। तो अभी कैसे होता था पता है क्या, बिफोर दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हेन एफडब्ल्यू काम करता था ना, तभी उसने देखा कि वर्कर्स ही प्लान करते थे और वर्कर्स ही एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, मतलब वर्कर्स अपने हिसाब से काम करते थे। देयर वाज नो टारगेट, देयर वाज नो टास्क, देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर वाज नो डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी वर्कर कुछ भी करता था, ये उसने नोटिस किया। तो उसने क्या बोला कि वर्कर्स को काम के हिसाब से डिवाइड करेंगे और उसको रिस्पॉन्सिबल भी रखेंगे। मींस देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क एज वेल एज देयर शुड बी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये काम दिया तो तू ये काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी तू लेगा, ऐसा। तो क्या होगा, वो काम टाइम पे खत्म होगा। क्योंकि पहला वर्कर्स कैसा ना, एक काम, एक टास्क खत्म करने के लिए 2-3 दिन लगाते थे। ठीक है, जबकि वो एक दिन में खत्म हो सकता है। बट आज के डेट में कैसे, हर एक टास्क का एक टाइम लिमिट होता है और उसी टाइम लिमिट में खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन ओसी टीचर, तो ओसी टीचर को कैसा है कि मेरा काम सिर्फ ओसी सिखाना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। मुझे बोला है कि ये चैप्टर आपका 3 घंटे में खत्म होना चाहिए, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट ये टास्क इतने टाइम में खत्म होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। डिले हो खत्म नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, तो ये था फिफ्थ। लास्ट वाला जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय ठीक है। और आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, आई एंटर्ड द कंपनी एज अ ग्रेजुएट। ठीक है, मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ और मैं कंपनी में एंटर किया। आफ्टर वर्किंग फॉर 1 or 2 years मुझको ऐसा लगता है कि मुझे भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमबीए करना चाहिए। तो कंपनी शुड सपोर्ट द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अचीव दैट पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आगे जाके एमबीए बनने के बाद में वो कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। और अगर कंपनी ने सपोर्ट किया ना उसको एमबीए करने के लिए एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय भी लॉयल रहेगा कंपनी से। तो एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलता है कि देयर शुड बी अ रेगुलर डेवलपमेंट इन द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग स्किल्स, रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड रिगार्डिंग एजुकेशन। तो आपका कैसे है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर होगा। तो ये थे 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार रिकैप कर लेते हैं। द फर्स्ट वन वाज सिलेक्शन, नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब हम लोग ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन वाज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें बोला था कि देयर शुड बी हार्मनी, हार्मनी मतलब पीस बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर द टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कैसे कि पीपल शुड कम इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एन पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, जब पॉजिटिविटी रहेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब यहाँ पर मैनेजर भी खुद ही डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि उसको ग्रुप में डिसीजन लेना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी वर्किंग इन ग्रुप, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा कि एवरी वर्कर शुड बी गिवन अ डिवीजन ऑफ वर्क एज वेल एज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब व्हेन देयर आर 4 एम्प्लॉइज, तो 4 एम्प्लॉय को वर्क डिवाइड करके देना चाहिए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए कि ये टाइम पे वो खत्म होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज दैट यू शुड डेवलप योर एम्प्लॉइज बाय गिविंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। तो ये थे प्रिंसिपल्स। अच्छा, अभी हेनरी फॉयल एंड एफडब्ल्यू टेलर में फर्क क्या है कि हेनरी फॉयल ने सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स दिया मैनेजमेंट का। He only laid 14 principles. But टेलर ने बट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब उसने टेक्निक भी बताया कि आप कैसे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे उसने पहला दिया था, द फर्स्ट टेक्निक इज वर्क स्टडी।
Work study is further divided to 3 parts. If you see over here, time study, method study, sorry, 4 parts. Study and fatigue study. Work study. Okay. Talk about time study. टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि आपको एक टास्क है ना वो टाइम पे खत्म होना चाहिए. तो FW टेलर ने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये टास्क कितने टाइम में खत्म होगा. ठीक है, बाय एन एवरेज पर्सन, एवरेज एम्प्लॉय. फॉर एग्जांपल, इफ एन एवरेज एम्प्लॉय इज कंप्लीटिंग दिस वर्क इन 8 आवर्स, मतलब ये टास्क को खत्म करने के लिए 8 घंटा तो लगता ही. ठीक है, तो वो 8 घंटे में ही खत्म होना चाहिए. मैंने बोला ना इनिशियली कैसे वर्कर्स अपने हिसाब से काम करते थे. तो अगर वो काम 8 घंटे में खत्म हो रहा है तो लोग 14 आवर्स में करते हैं, जानबूझ के करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? मतलब उसका रीजन था. पहले कैसे वर्कर्स वेर वर्किंग ऑन डेली वेजेस, मतलब आर्ली बेसिस, घंटे का उनको पैसा मिलता था. अभी ये वर्कर्स अगर वो काम 8 घंटे में करेंगे तो उनको पैसा कम मिलेगा. तो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू वर्क फॉर 10-11 आवर्स टू कंप्लीट दैट टास्क, तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है. ठीक है, क्योंकि तभी कैसा मैंने बोला था कि मैनेजर और सुपरवाइजर्स को आइडिया नहीं था कि ये टास्क कितने टाइम में खत्म होगा. दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट. बट FW टेलर केम अप विद एक्सपेरिमेंट्स एंड उसने बताया कि ये काम 8 घंटे में खत्म हो सकता है. तो एवरी वर्कर कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 8 टास्क. इससे क्या होता है, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेस. सो टाइम स्टडी हेल्प्ड फॉर द increasing of efficiency level of the employee. Okay, next we come to method. Abhi now to complete a work there are many methods. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कंप्लीट योर स्टडीज देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग योर स्टडीज. बट सबसे बेस्ट मेथड हमको चूज करना है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े. अभी क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, मैनेजर्स यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी मेथड, फिर देखते थे अगर ये मेथड चला नहीं तो दूसरा मेथड यूज करेंगे. इससे क्या हो रहा था कि वेस्ट हो रहा था, रिसोर्स वेस्ट हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, मनी वेस्ट हो रहा था. बट अभी कैसे है कि आफ्टर ऑल द एक्सपेरिमेंट्स वी चूज वन बेस्ट मेथड, कि ये बेस्ट मेथड है, इससे हम लोग ये टास्क खत्म करेंगे. And if we use this best method, then only the task is completed. And this methods, the best method is used for handling. देखो last line लिखा है, handling raw materials, transportation, inspection and storage. ठीक है, सब चीजों में ये मेथड यूज करेंगे. ओके, तो बेस्ट मेथड यूज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगा, वेस्टेज कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू मोशन स्टडी. Now this is very important and difficult to understand. Let us understand this. अभी मैंने बोला ना कि FW टेलर was the father of scientific management. मतलब वो डिटेल से डिटेल स्टडीज करता था. वो मतलब ऑब्जर्वेशन उसका डिटेल होता था, एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत डिटेल होते थे. तो उसने देखा कि अपना जो बॉडी मूवमेंट्स होता है काम करने के टाइम पे, या जो मोशन होता है, वो मोशन में भी बहुत सारे वेस्ट मोशंस होते हैं. तो वो क्या करता था कि वेस्ट मोशंस को कट करता था जिससे काम फटाफट. अभी फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नो सबवे. सबवे मालूम है सबको, सैंडविचेस मिलता है, सब्स मिलता है. अभी आपने देखा रहेगा वो सबवे में वो ब्रेड पे वो लोग सॉस लगाते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस व्हिच इज इंप्लीमेंटेड ऑन दैट. अभी वो सॉस लगाने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो वो सॉस वो लोग 2 बार लगाते हैं. एक सॉस 2 बार लगाते हैं, मींस मोशन 2 बार हो रहा है. ठीक है, मालूम है ना, एक व्हाइट कलर का कैन होता है, उसके ऊपर एक नॉब होता है, उसमें से वो सॉस निकलता है. तो वो लोग वो 2 बार लगाते हैं, तो मोशंस 2 बार हो रहा है. अभी कैसे है ना कि इस जगह पे अगर मेरे को ये मोशन फास्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, वो कैन है ना, वो कैन में ऊपर एक नॉब है ना, उसके जगह पे मैं 2 नॉब लगाऊंगा. अभी मैं 2 नॉब लगाऊंगा तो मतलब सॉस एक ही टाइम पे 2 बार गिर रहा है, मतलब मेरे को सिर्फ एक ही बार मोशन करना पड़ेगा. ठीक है, पहले मैं 2 बार मोशन कर रहा था सॉस का, बट अभी मुझे एक ही बार करना पड़ेगा. तो जब मैं एक ही बार करूंगा तो मेरा टाइम बचेगा. ठीक है, टाइम बचेगा मतलब मैं ज्यादा सैंडविचेस बना पाऊंगा, और जब मैं ज्यादा सैंडविचेस बना पाऊंगा तो मतलब मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. तो FW टेलर इतना डिटेल में प्लानिंग कर रहा था कि मोशंस भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए. और इसको ये जो मोशन स्टडी और मेथड स्टडी है ना, इसको सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था जिसका नाम है हेनरी फोर्ड. आपने सुना रहेगा हेनरी फोर्ड. ही इज अ कार मैन्युफैक्चरर, फोर्ड कंपनी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट कार मैन्युफैक्चरर्स इन USA. उसने ये जो टाइम स्टडी और मेथड स्टडी है ना, और मोशन स्टडी, इसको इम्प्लीमेंट किया था. अच्छा, उसके जो फैक्ट्री में जहां पर कार बनता था ना,
इनिशियली एक कार बनाने के लिए उसको 12 आवर्स लगते थे, 12 घंटे. इट यूज्ड टू टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ वन कार. बट विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, उसने वो काम, वो कार मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो कितने टाइम में खत्म किया मालूम है? नाउ द कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन 93 मिनट्स. ट्रस्ट मी, जो पहले 12 घंटा लगता था, अभी 93 मिनट्स लगता है. ठीक है? Why? Because he implemented this method, study, motion study, and as well as time study. ठीक है? तो ये हो गया 3. फोर्थ आता है, दैट इज फटीग. फटीग मतलब कैसा है कि एफडब्ल्यू टेलर ने ये भी देखा कि एक एम्प्लॉय का कैपेसिटी कितना है काम करने का. ठीक है? तो उसने देखा कि एम्प्लॉय 8-9 घंटे के बाद में एग्जॉस्ट हो रहा है, उसका कैपेसिटी कम हो रहा है, उसका एफिशिएंसी लेवल कम हो रहा है. तो उसने प्लान किया कि पूरे दिन में a worker should work only for 8 to 9 hours. उसने ये भी नोटिस किया कि 8 से 9 घंटा काम कर सकता है, मतलब अगर एक एम्प्लॉय 6 घंटा काम कर रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी लेवल कम हो रहा है. ठीक है? तो उसने ये नोटिस किया, क्योंकि पहला कैसे है, इंडस्ट्री में वर्कर्स अपने टाइम पे आते थे, कितना भी काम करते थे, कभी भी काम करते थे, बहुत टाइम रेस्ट भी करते थे. ठीक है? मतलब अगर 6 घंटा काम किया तो उसमें 3 घंटा रेस्ट किया, तो उसका कोई हिसाब नहीं था, अकाउंटेबिलिटी नहीं था. बट आज के डेट में अगर आप ऑफिस में देखेंगे तो पीपल वर्क फॉर 9 आवर्स, इन दैट दे गेट 1 आवर ब्रेक. ठीक है? फॉर लंच एंड फॉर टी ब्रेक, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा रेस्ट करने के लिए. बट बाकी का 8 घंटा उनको काम करना है. ठीक है? तो ये भी उन्होंने उसने इम्प्लीमेंट किया कि 8 घंटा हम काम कर सकते हैं और 8 घंटे में क्या क्या करना है वो भी बता. दिस इज कॉल्ड एज फटीग स्टडी. तो ये था the 4 types of study, that is time study as well as fatigue study. Next we come to क्या है. इनिशियली है ना, पहले जो भी इंडस्ट्री में लेबर्स काम करते थे ना, तो वो लोग खुद का टूल्स घर पे से लेके जाते थे. ठीक है? टूल्स बोला तो शॉवेल, शॉवेल मीन्स फावड़ा, जिसको हम लोग हिंदी में फावड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में शॉवेल बोलते हैं. ये टूल्स है ना, वो लोग घर पे से लेके जाते थे. अभी घर पे से ले रहे मतलब खुद ही खरीदा हुआ है, तो उसका क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है. अब जब क्वालिटी का गारंटी नहीं रहेगा, तो ये टूल्स जब यूज करेंगे इंडस्ट्रीज में, तो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं होगा. तो एफडब्ल्यू डेल ने क्या बोला कि कंपनी ने खुद ये टूल्स और इक्विपमेंट्स खरीदना चाहिए ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, और सब टूल्स हम एम्प्लॉय को खुद ही प्रोवाइड करेंगे. इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा. अच्छा, इसमें भी कैसे ना, इतना डिटेल, उसका एक आर्टिकल है आर्ट ऑफ कटिंग टूल. ठीक है? ये आर्टिकल अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आर्ट ऑफ कटिंग टूल. उसमें ना उसने शॉवेल पे एक्सपेरिमेंट किया. शॉवेल माने ना फावड़ा. अभी ये फावड़े पे जो, शॉवेल पे जो क्या एक्सपेरिमेंट किया कि शॉवेल का जो वेट है और लेंथ है वो कितना होना चाहिए, उस पे एक्सपेरिमेंट किया ताकि उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़े. एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिगरस एक्सपेरिमेंट्स ही केम अप टू अ कंक्लूजन कि शॉवेल का वेट शुड बी 21.5 पाउंड्स. ओके? और उसका जो लेंथ है वो भी कम होना चाहिए. अगर ये दोनों सेम रहेगा तो शॉवेल यूज करना इजी होगा लेबर्स को और एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा. इतना डिटेल में उसने किया हुआ है प्लानिंग. ओके? तो जिससे क्या हुआ, वर्कर्स का एफिशिएंसी लेवल बढ़ा. ओके? तो एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स, देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. मतलब जहां पर काम कर रहे हैं उधर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, गुड्स को बनाने का खर्चा. ओके? तो देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. इससे क्या होगा, इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क. इसलिए अब अगर अभी के ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, बड़े बड़े कंपनीज में जाएंगे, तो इफ यू सी द कंप्यूटर्स, ओके, द लैपटॉप्स, द प्रिंटर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक ही कंपनी का होता है और अच्छी कंपनी का होता है. ठीक है? जो कंपनी अपने को प्रोवाइड करता है. क्यों करता है? बिकॉज अपना काम फटाफट होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए. ठीक है? सेकंड के बाद में थर्ड वन इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग. नाउ ट्रस्ट मी, विदाउट अ टास्क सेटिंग एन एम्प्लॉय विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली. अगर आपने उसको टास्क दिया ही नहीं, वो काम नहीं करेगा. सपोज मैंने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, उसको बोला आज से तू काम चालू कर, बट उसको पता नहीं क्या करने का है, तो एफिशिएंटली कर पाएगा क्या? नहीं.
तो पहला आपको एक टास्क सेट करना है और आपको फिर एक्सपेरिमेंट करना है, एनालाइज करना है कि ये टास्क इतने टाइम में खत्म होता है क्या नहीं, ठीक है। फिर आपको वो टास्क अपने एम्प्लॉयज को देना है, ठीक है, और उनको बोलना है कि ये टाइम पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है, देखो, द टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिवन एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब मैंने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, मैंने उसको एक सैलरी दिया है, ठीक है, महीने का मैंने उसको 20 to 30,000 सैलरी दिया है, ठीक है, और उसको काम करना है हर दिन का, उसको 8 hours he has to work, but he is only working 6 hours और 5 hours पूरे महीने में। तो क्या हो रहा है, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूज नहीं हो रहा है। मैंने उसको अपॉइंट किया, मैंने उसको पूरा 8 घंटे का पेमेंट किया है, और वो काम तो सिर्फ 6 hours और 5 hours कर रहा है। क्यों, मतलब मैंने क्यों कर रहा है ऐसा, बिकॉज मैंने उसको वो टास्क बराबर से दिया नहीं है। ओके, तो आपको एक टास्क सेट करना है कि ये एम्प्लॉय पूरा 8 घंटा बिजी होना चाहिए, उसको बोलते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो आपको पहले से प्लान करना है कि ये एम्प्लॉय को मेरे को 8 घंटा इतना काम देना चाहिए ताकि वो बिजी रहे, वेस्टेज नहीं हो। ओके, नेक्स्ट वन है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले कैसे होता था मालूम है क्या, इंडस्ट्रीज में अगर उनको वर्कर्स चाहिए होता था तो इंडस्ट्री का जो मैनेजर होता था या जो सुपरवाइजर होता था वो बाहर जाके सिर्फ बोलता था कि मेरे को अभी वर्कर्स का 10 वर्कर का जरूरत है, तो जिसको जिसको काम चाहिए वो आ सकता है। तो उसमें कैसा है कि कुछ पूछता नहीं था, सिर्फ देखता था कि हाँ ये फिट है तो इसको काम पे रख देते थे। बट आज के डेट में ना देयर इज अ साइंटिफिक अप्रोच। आज अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो दे विल आस्क यू योर क्वालिफिकेशन, they will ask you your experience, they will ask you your skills, there will be an aptitude test, there will be a group test, there will be a personal interview। इतना एनालिसिस होता है एक एम्प्लॉय का आज के डेट में, इसको बोलते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन। ओके, और अभी सिलेक्ट करने के बाद भी एम्प्लॉय को ऐसा छोड़ते नहीं है। सिलेक्ट करने के बाद में जब वो कंपनी ज्वाइन करता है तो 1 महीने का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर उसको बताते हैं कि कंपनी क्या काम करता है और आपका ये कंपनी में क्या रोल है। दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्योंकि अगर आपका साइंटिफिक सिलेक्शन, अगर आपने सिलेक्शन सही किया तो वो एम्प्लॉय आपके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और उसको ट्रेनिंग भी देना जरूरी है बिकॉज उसको कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। तो एफडब्ल्यू टेलर बोलता है कि द सिलेक्शन शुड बी साइंटिफिक, एनालिटिकल, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर इट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको और एक नाम से बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे है कि इन अर्लियर डेज the laborers, I'm talking about the laborers, the labor used to plan and they used to work। मतलब वो लोग खुद ही प्लान करते थे, वो लोग आते थे इंडस्ट्री में, खुद ही प्लान करते थे कि आज क्या काम करना है और खुद ही वो काम करते थे। तभी सुपरवाइजर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था, सुपरवाइजर क्या सिर्फ सुपरवाइज करता था कि लोग कर रहे हैं क्या, बट उसके आगे उसको पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। अभी मेरे को बताओ इसमें कैसे कि वर्कर्स कैन टेक अनड्यू एडवांटेज, उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, द प्रोडक्टिव लेवल लेवल विल इन डिक्रीज। तो एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलता है कि प्रोडक्शन का काम अलग होना चाहिए, प्लानिंग का काम अलग होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर शुड बी अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो ही प्लान नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये दो डिपार्टमेंट उसने बनाया। तो लेट अस फोकस ऑन दैट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या होता है, इफ यू सी ओवर हियर, आपको अगर दिखता रहेगा ब्लू में लिखा है एट प्लानिंग लेवल। नाउ प्लानिंग लेवल में देयर आर 4 employees, if you see over there, या 4 workers। The first one is root clerk। रूट क्लर्क का काम क्या है, ही टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। मतलब उसका काम क्या है कि उसको ये प्लान करने का है कि ये काम या ये जो काम है एक मशीन से दूसरे मशीन कैसे जाएगा। बिकॉज जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जब एक रेलवे का इंजन बनाना है तो टायर उसका अलग जगह पे बनेगा, बॉडी अलग जगह पे बनेगा, फिर उसको असेंबल करेंगे। तो ये जो काम है वो रूट क्लर्क का है। रूट क्लर्क बताएगा, प्लान करेगा कि ये काम दूसरे काम पे कैसे जाएगा। उसके बाद में आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या बताएगा, ही रिकॉर्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस देगा वर्कर को कि आपको ये काम कभी खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, वो इंस्ट्रक्शंस देगा। नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अच्छा, अभी कैसे है कि इंस्ट्रक्शन तो मिल गया काम करने के लिए,
कैसे करना है वो मालूम पड़ गया, बट उसको मॉनिटर करने वाला भी चाहिए ना कि कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं ना कि ये काम हमने दे दिया है, आपका जब भी खत्म होगा तभी होगा, टारगेट होना चाहिए। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कैसा है कि ये जो क्लर्क है, ही डिटरमाइंस द टाइम इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा कि ये जो टास्क है इसको 10 घंटा लगेगा, ये 10 आवर्स में खत्म होना चाहिए। फिर वो इंप्लीमेंट करेगा कि 10 आवर्स में होना चाहिए। ठीक है, वो ये भी इंप्लीमेंट करेगा इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 घंटे में कितना कॉस्ट लगेगा वो भी वो करेगा, उसको बोलते हैं टाइम एंड कॉस्ट लो। ठीक है, ये सब प्लानिंग लेवल हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लास्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ensures that the workers are working as per factory rules। मतलब कैसे कि डिसिप्लिन का क्या टास्क है या क्या रोल है, वो पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और फिर वो देखेगा कि वर्कर्स आर फॉलोइंग दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, जितना ब्रेक दिया उतना ही ब्रेक ले रहे हैं, जितना टास्क दिया उतना टास्क खत्म हो रहा है क्या नहीं। ये सब प्लानिंग किसका होगा, डिसिप्लिन क्लब का। तो ये थे 4 एट प्लानिंग लेवल, जिसमें द 4 वर्कर्स एट प्लानिंग लेवल। नाउ वी कम टू द 4 अदर वर्कर्स एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। सबसे पहला है गैंग बॉस। अभी नाम से पता चला ना, गैंग बॉस मतलब ये गैंग का लीडर है। ठीक है, अभी गैंग का लीडर मतलब क्या है कि ही एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। मतलब वो वर्कर्स के सिर पे खड़ा रहता है और उनसे काम करवाता है, इसको बोलते हैं गैंग बॉस। ठीक है, वो देखता है कि सब अपना काम कर रहे हैं क्या नहीं, टाइम पास हो रहा है क्या नहीं। ये किसका जॉब है, गैंग बॉस। नेक्स्ट वन इज स्पीड बॉस। ensures that the work is completed in specific time। अभी देखो ना, ऊपर जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था उसने एक टाइम दिया, ये टाइम पे खत्म होना चाहिए। उसने तो प्लान किया है, लेकिन वो जाके देखेगा नहीं कि ये टाइम पे खत्म हो रहा है क्या। वो किसका जॉब है, स्पीड बॉस का। ठीक है, तो स्पीड बॉस देखता है कि वर्क टाइम पे खत्म हो रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। नाउ इफ यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री और कंपनी, देयर आर मेनी मशीन्स। ये मशीन्स कैसे है कि लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होता नहीं। तो कैसे है कि मशीन्स अगर खराब हो गए तो उसको रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने रिपेयर नहीं किया तो क्या है, आपका काम उधर रुक जाएगा। ठीक है, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो रिपेयर बॉस का काम क्या है कि एंश्योर्स दैट ऑल द मशीन्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, मेंटेन प्रॉपर्ली, रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बोला तो वो इंस्पेक्शन करता है, एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि जो क्वालिटी होना चाहिए गुड्स का, जो हमने सेट किया है वैसे ही क्वालिटी निकलना चाहिए गुड्स का। ओके okay? तो वो इंस्पेक्शन का काम है कि ये गुड्स क्वालिटी गुड्स निकल रहे हैं क्या नहीं, मशीन्स बराबर से यूज हो रहा है क्या नहीं, स्टैंडर्ड मशीन यूज हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग मशीन जब यूज कर रहे थे, 2 मशीन अच्छा रहता है, एक मशीन स्टैंडर्ड मशीन नहीं रहता है, लो क्वालिटी मशीन रहता है, जिससे प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या है कि ऑल द मशीन शुड बी एट अ स्टैंडर्ड रेट, पीपल हु आर वर्किंग एफिशिएंटली और नॉट, ये उसका इंस्पेक्शन करने का काम है। ओके, तो ये था एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल अकॉर्डिंग टू टेलर। तो हमने 2 लेवल पढ़े, one is at planning level and one is at implementation level। तो ये था functional organization और it is also called as functional foremanship। Last we come to differential piece rate wage plan। Now this is an article written by FW Taylor itself। ठीक है, मतलब उसने इस पे लिखा है पीस रेट वेज प्लान पे। Here he talks about remuneration। remuneration याद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। remuneration मतलब क्या है, the money which we get for our service। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमको जो सैलरी मिलता है उसको हम remuneration बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है कि remuneration should be fixed in such a way that average workers is motivated to attain a standard output। उसका मतलब क्या है कि सपोज एक एक काम खत्म करने के लिए 8 घंटा लगता है एवरेज वर्कर को। ओके, तो एवरेज वर्कर अगर वो 8 घंटे में वो काम खत्म कर रहा है तो उसको उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा उसी, इफ देयर इज वन मोर एम्प्लॉय हु कंप्लीट्स दैट सेम वर्क इन 10 आवर्स, तो उसको सेम रेम्यूनरेशन नहीं देना चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन कम होना चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट कंप्लीटिंग द वर्क एट सेम टाइम, ही इज इनएफिशिएंट। एंड इफ द पर्सन इज वर्किंग कंप्लीटिंग द वर्क बिफोर टाइम, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज है जो 8 घंटे का काम 6 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, तो उनका वेज रेट, उनका सैलरी अलग होना चाहिए, उनको ज्यादा मिलना चाहिए।
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इन पीस रेट वेज प्लान। सबका वेजेस सेम नहीं होना चाहिए, उनके काम के हिसाब से होना चाहिए, उनके एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से होना चाहिए। इससे क्या होगा, मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन ज्यादा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। द टेक्निक motivation the employee to attain higher standard of performance and can earn wages, that is remuneration at a higher rate। ठीक है, तो FW टेलर इधर क्या बोलता है कि there should be no different, there should be no common wage rate plan, difference होना चाहिए depending on the efficiency level। तो this were the techniques laid by FW Taylor for management। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, द फर्स्ट वन वाज वर्क स्टडी, उसमें हमने 4 पढ़ा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, method study as well as fatigue study। Then we learned about scientific task setting, scientific selection and training, functional organization, and the last one was differential piece rate wage plan। Okay, let me tell you, this differential piece rate wage plan is written by FW Taylor। So here the chapter ends। Okay, we completed with the principles of FW Taylor। Okay, now if you have any doubts regarding today's lecture, you can ask me now through chat। आपको कोई टॉपिक समझा नहीं, is my voice clear to you now? Yeah, you have any doubts regarding any topic of today's session? ऐसा कोई प्रिंसिपल समझा नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक समझा नहीं, you can ask me now। अच्छा, let me ask you some questions so we can recap the whole lecture। I'll be asking some questions, you need to answer। If we talk about the scientific management, who is called as father of scientific management? Who is known as father of scientific management? Okay, now if you talk about the principles of scientific management, you have to name the principle। I'll give a hint। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था जिसमें मैंने बोला कि द वर्क शुड नॉट बी डन ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस? द वर्क शुड नॉट बी डन ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। यस, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। करेक्ट, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल में मैंने ऐसे बोला था कि देयर शुड बी पीस बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर? अच्छा, कौन से मैनेजमेंट में मैंने ऐसे बोला था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने ऐसे बोला था कि देयर शुड बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज? Mental revolution, amazing, great, great। Okay, now we come to the techniques। अच्छा, ऐसा कौन से टेक्निक में मैंने बोला था कि आपका बॉडी मूवमेंट को भी वो लोग नोटिस करते हैं, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन सा टेक्निक था, कौन सा स्टडी था? करेक्ट। ओके, ऐसा कौन सा स्टडी था जिसमें हमने पढ़ा कि वर्कर्स को एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए टू कंप्लीट द टास्क? करेक्ट। अच्छा, ऐसा कौन सा टेक्निक था जिसमें हमने ये पढ़ा कि वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स? I'm not talking about the study, I'm talking about technique, standardization। The answer is standardization। अच्छा, in which technique the employees are appointed on the basis of proper interviews and all? ये किस में था, कौन से टेक्निक में था?
It was selection of scientific selection and training, correct? Okay, so I hope the topic of today is clear with you. There are no doubts. I hope everything is understood properly. The name